आर्या नावाच्या 12 लोक आहेत. ओके लो पण आहेत आणि त्याच्यात कोण सो लेट अस स्टार्ट. ओके स्पेलिंग नाही म्यूट कळत योरसेल्फ. ना, सेम स्पेलिंग आहे. माणूस बघून कळतं आर्या की आर्या. मुली माहित नाहीत मला. खूप लोक आहेत आर्या किंवा आर्य नावाचे. किती कॉमन नाही ठेवलंय बाबा. अरे म्यूट करो आर्या, म्यूट कर. सो लेट अस स्टार्ट विथ benzene ring. Okay, so this is 6 carbon having double bond. Okay, so if you are writing in terms of this is C, C, C and C. So double bond, double bond, double bond satisfy all with 4. So this is 1, 2, 3, 4. इसलिए hydrogen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4. So this is C6, H6, C6, H6. Okay, C6, H6 formula wise, and it is represented like benzene में, especially benzene ring. Suppose you are writing benzene structure like this one. So what is the difference between structure number 1 and structure number 2? No difference. You just see structure number 1 and structure number 2. Only the difference of a pi bond. Only difference of a pi bond. Okay. Only difference of pi bond, but structure is same. Similar structure, just mirror image of each other. So 1 and 2, neither of the structure 1 and 2 is describing complete structure of the compound. That's why books में तुमको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा. ठीक, तो बेंजीन मैंने इसको बोला, वो वाला भी है, तो तुझे अब सभी लोग जल्दी जल्दी में ऐसा लिखेंगे. ठीक है ना. व्हाट मस्ट बी देयर, सर्कुलर ऐसा होना चाहिए था, बट लोग सॉलिड लिखेंगे. सॉलिड लिखेंगे और सॉलिड वाला ही हम लोग यूज करेंगे. ओके, जल्दी जल्दी में हम लोग भी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट naming of benzene ring and its compound. Now suppose COOH is written, then it is specially called as benzoic acid. Then it is called as benzoic acid. Benzoic acid. Take, and in preference chart, acid was highest priority. So how benzene ring is specially numbering is done? COOH is highest priority. That's why 1, 2, 3. So this become 3-methyl now benzoic acid. अपना दिमाग नहीं लगाना है. For benzene ring compounds, specially naming is given. Similarly,
if you are having this one, इसके पहले नेमिंग क्या था? अमाइड, अल्केना अमाइड. नाउ दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन अमाइड या बेंजामाइड. ठीक, दिस इज बेंजामाइड, बेंजामाइड. इसके पहले क्या होता था? अल्केनल. रेवा इज सेइंग कि प्लीज शो मी प्रीवियस स्लाइड जस्ट फॉर 1 मिनट. तो स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, each and every one is described by this one. ठीक है रेवा? This is called as benzaldehyde. This is called as benzaldehyde. इसमें you cannot change the number of carbon, just like previous one. Just like previous one. ठीक है ना? Previously क्या होता था? You change the number of carbon 1, 2, 3, 4, 5. Here benzene ring is benzene ring. Now if you are taking benzene ring and OH is called as phenol. Is called as phenol. Specially है, देख लो कुछ up, and this is by IUPAC. This is by IUPAC. Suppose you are having OCH3, so this will be methoxybenzene. So slightly separate rule for benzene ring containing compound. This is called as nitrobenzene. Please note down fast. Nitrobenzene. Nitrobenzene. Pranav, is there any problem? Pranav, is there any problem? Please write fast. Anyone is having doubts? Siddhi done, Snehal done. See, this is all and phenyl, all benzene ring के साथ होगा is called as phenol. If it is with alkyl group is called as alkanol. Phenol now total separate functional group and different naming. ठीक है ना? Phenol specific name is given especially for
OH group containing with benzene ring. Now, if you are having ऐसा NH2, this is called as aniline. इसके पहले क्या होता था? अल्केनामाइन, 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 but now it is aniline. Yes, I will tell you each and everything. Now, if any group is present on a benzene ring, this is group. Okay. So group के just बाजू वाला carbon is 1, 2, sorry, not 1, 2. 1 is starting from functional group. First thing. Second thing, you will always find the name in terms of ortho, meta and para. तो जो इसके ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन है इज कॉल्ड एज ऑर्थो. ऑर्थो इज रिप्रेजेंटेड बाय O. दो दो ऑर्थो, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. ऑर्थो के नीचे वाला इज कॉल्ड एज पैरा. तो दो दो पैरा, पैरा इधर भी है, पैरा इधर भी है. तो ऑर्थो इज O, लेफ्ट साइड राइट साइड, पैरा इज लेफ्ट साइड right side, and this is called as M. M is nothing but meta position. So ortho, meta and para. 2 ortho, 2 para and 1 meta. 2 ortho, 2 meta, sorry, 2 ortho, 2 para and 1 meta. Ortho para is not the IUPAC naming. You will always write 1, 2, 3. Okay? If you are writing 1, 2, 3 is correct. But someone is suppose writing ortho group name. If your examiner has deducted the marks, you cannot say anything to him. Okay? So if you are writing 1, 2, 3, that is 3 chloro, 3 chloro benzamide, or you can write M. M is meta chloro benzamide, but it will be always considerable if you are writing 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? And all the preferential group are just like previous one. Okay? Yes, sorry, this is P. P is para. Sorry. Now tell me the name, please. Tell me the name, please. So numbering will be 1, 2, 3, 4, 5. ठीक. अब देखो, अगर किसी ने नंबरिंग ऐसा किया तो will be wrong. Why it will be wrong?
Suppose anyone is doing numbering like this one. So this is wrong. Why wrong? 6 is coming at this position. So when you are doing numbering from right side, it will be coming in 1, 2, 3 per chloro, 4, 5, 6 per chloro. But if you are numbering from left side, then your numbering is finished within 1, 2, 3, 4. So numbering is done such that all groups are coming at minimum position. So this must be 2,5 dichlorobenzoic acid. Wow, सब लोगों ने अभी तक करेक्ट लिखा है. यस, सब लोगों ने करेक्ट लिखा है. ठीक है. सो दिस मस्ट बी 2,5 dichloro benzoic acid. Okay. If you are writing ortho para dichlorobenzoic acid, ठीक है ना. इफ यू आर राइटिंग ऑर्थो पैरा, तो अब देखो व्हाट प्रॉब्लम विल कम. सपोज यू आर राइटिंग ऑर्थो, इधर देखो सब लोग, कोई कुछ नोट नहीं करेगा. ये भी तो ऑर्थो. 1 मिनट भाई, 1 मिनट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बिल्कुल ही उल्टा कर डाला है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ, दिस इज ऑर्थो मेटा एंड पैरा. सॉरी सॉरी, ऑर्थो मेटा एंड पैरा. एक पैरा. तो यहाँ पर हमने पहले सही लिखा था, क्या कर दिया. एक्सट्रीमली सॉरी. अब देखो तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम आएगा. इफ यू आर राइटिंग कॉमन नेम फॉर दिस वन, प्लीज देखो लेफ्ट साइड वाला. ऑर्थो कॉमा मेटा डाइक्लोरो बेंजोइक acid. Now what is the biggest problem for this one? If you are writing this one, so this is also called as, देखो ये ऑर्थो, ये मेटा. अब ये मुझे कहां पता चल रहा है कि ऑर्थो लेफ्ट वाला या ऑर्थो राइट वाला. Try to understand what kind of problem will arise if you are writing ortho and para. This one is ortho, meta and para. So this is ortho and para, meta. This one is also ortho and meta, but structures are different. C structure number 1, C structure number 2. Both are different structures, but they will have same ortho and meta para naming. That's why we will not do naming with ortho meta para. We will always do with 2,5. Okay. So please write down numbering of first compound. Not in terms of ortho and para, meta. That will be in terms of 1, 2, 3, 4.
बोल सही सही मृणाल. Got it. So then write down the naming, please. Got down the, if you have understood, then please write down the name. Please fast. So 2,3 dichlorobenzoic acid is correct. Yes. Don't write ortho meta para. So everyone is correct. So I'm also writing the name. That is 2,3 dichlorobenzoic acid. Numbering must be done like 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Okay. So let us move to next one. नाही पण मला विचारायचं मी विचारलं त्याला क्वेश्चन मार्क कसा घडला Mute करा. विचारलं तुला तू कोण एवढा चिडतोय सोबत नाही पण मला विचारायचं Now tell me one is given to. 1 is given to. 1 is given to which group? See the priority chart. See the priority chart. Yes, Darshan, Yogendra. See the priority chart. This must be given to CHO. Now after that, you have two functional group. Left side OS, right side NH2. Which one must be given to 2? Which one must be given to? NH2 or OH? See the priority chart. After CHO, which one is coming? OH. OH. NH2 तो बाद में है. See, this is the seniority of preferential chart. Okay. Now tell me the naming, please. So others will behave as a side chain. Side chain OH is called as hydroxy. भाई हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं. Arya cube. Arya cube. Six amino 2 hydroxy 4 methyl. बेंजल्डिहाइड होना चाहिए वेदांग. वेदांग बेंजल्डिहाइड. नीचे माइक.
सो 100% करेक्ट। देख लो बेटा, यही है मेरे साथ रहने से। You will face problem little bit in starting, but you will be the master of the topic. कुछ लोगों ने हाइड्रोक्सी लिखा है, कुछ लोगों ने अमाइनो लिखा है, तो ठीक है, अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज कर लेंगे, अदरवाइज इट इज करेक्ट। किसी ने 2 हाइड्रोक्सी पहले लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। ठीक, सो दिस इज 4 methyl and benzyl dehyde. Okay, benzyl dehyde. So I don't think there is any issue. ऐसा इसके लिए स्पेशली चलो भाई, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग उतना टफ नहीं है, हाँ? इतना परेशान नहीं होना है। तो एक वाला बेंजीन रिंग हो गया, दूसरा 2 बेंजीन रिंग एक साथ हो तो बोलो कोई होनहार बालक या बालिका, सब लोगों ने देखा है इसको। यस, बेंजोइल क्लोराइड, यस, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट तुमको यही ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, बेंजोइल क्लोराइड। मैक्सिमम टाइम तुमको बेंजोइल क्लोराइड लिखा हुआ मिलेगा। नीचे वाले बोलो यस। सही ने बोला नेफ्थलीन, वेदांग, श्रावणी, दर्शन। दिस इज नथिंग बट नेफ्थलीन। कभी देखा क्या नेफ्थलीन? बोलो, सब लोगों ने देखा होगा नेफ्थलीन। कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह देखा कभी? वॉशरूम वगैरह या इधर उधर सब लोग रखते हैं। Yes, naphthalene balls. Yes, यस, see. ठीक, तो ये है। फिर सब लोगों ने मेरे ख्याल से देखा होगा, डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि 100% देखा है। ओह, मैंने पहले ही लिख दिया। चलो अच्छा, 3 होता है तो इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन। ऐसा है। So orthometapara, this is the common name type, okay? Orthometapara.
अनुश्री, मैंने देख लिया तुम्हारा घर बहुत अच्छा पेंटिंग है, इसलिए वीडियो बंद किया जाए। चलो भाई, लेट अस कम टू नेक्स्ट वन। हाँ, नोट कर लिया सबने? तो ऐसे हम लोग का ये IUPAC नेमिंग होता है फिनिश्ड, ठीक है ना। तो जस्ट और भी कुछ वर्ड्स यूज होंगे। एक मैंने जानबूझ करके कॉम्प्लेक्स नेमिंग छोड़ करके रखा हुआ था, जो कि मैं अभी देख लेता हूं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग क्या होगा? ब्रांच है, उसके अंदर भी ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग विद इन ब्रांचिंग। कैसे? सपोज यू आर हैविंग दिस वन, ये क्या हो गया? CH3 CH2, डरने वाली बात नहीं है। CH2 CH2, सपोज दिस इज CH2 CH2 एंड CH2, CH लिया तो ऐसा ले लिया। अभी क्या हो जाएगा? नंबरिंग मस्ट बी डन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सपोज इट इज सेम, एक और बढ़ा दो। तो नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम लेफ्ट साइड, इट इज नियरर वन। 5 6 7 8 9 10, but this one is branch within the branch हो गया। ब्रांच विद इन द ब्रांच कैसे है, मैं फिर से करके बता देता हूं तुमको। सपोज यू आर हैविंग दिस वन, तो क्या होता? दिस वन इज CH2 CH3 is called as sorry, is called as ethyl, is called as ethyl, but अब मैं क्या बोलूं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। So this is branch within the branch, branch within the branch है। तो now you cannot write ethyl, इथाइल के अंदर भी क्या है? मिथाइल। सी, दिस इज इथाइल, उसके अंदर एक ब्रांच और है मिथाइल। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। ओके, सो हाउ इट इज डन? फर्स्ट, कहां से पेंडिंग ग्रुप लगा हुआ है? 5 से। स्ट्रेट चेन, मेन चेन में देखो इज 5, 5 से अटैच्ड इज कॉम्प्लेक्स नेम। तो कॉम्प्लेक्स नेम इज रिटन एज 5, उसके बाद ब्रैकेट एंड ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट, नो करली नो स्मॉल, ठीक है ना। करली, स्मॉल और स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर याद हो हम लोगों ने यूज किया था, बाईसाइक्लो करवाया है क्या मैंने? Oh, sir. यस, बाईसाइक्लो का हुआ है। तो बाईसाइक्लो इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। नाउ follow the same procedure of IUPAC first rule. Longest chain from where it is joined. Longest chain from where it is joined. So it is joined with fifth straight chain carbon will be given as number 1. And then longest 2. So there is one methyl group which is present at branching of 1. So you must not have confusion of one should be straight chain या one should be branch within the branch, इसलिए ऐसा लगा दिया। But in textbooks it is not written as 1 dash and 2 dash, it is written only 1. So first write one methyl.
Suppose methyl was not present. Suppose methyl was not present. Then it was ethyl. So this was side chain of ethyl. So methyl is the side chain of ethyl. Now I told you कि one dash is not written. If one dash is not written, so what is the difference between one red and one blue? Number one red, number one blue. Difference is that this numbering is coming in the bracket. Take it. That's why it must not be confused one. And simple decane. First tell me please, is there any doubt? कोई doubt है क्या? Yes or no? Please tell me fast. Write down fast. No doubt, no doubt. Can you explain again? Yes, why not? Reva is saying, Pranav is saying. Yes, anyone else? Sir, please explain again. हाँ. ओके, किसने बोला? रेवा ने बोला, Shravani. श्रावणी, सिद्धि, सब लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन करिए. फिर से करते हैं, फिर से करता हूं मैं. देखो, ओके, नो प्रॉब्लम. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. इसीलिए मैंने स्टार्ट में नहीं किया था इसे. हाइड्रोकार्बन में कर लेना चाहिए था बट नहीं किया था. ओके, मैं फिर से रब करता हूं. पहले बोलो, इथाइल में कोई डाउट है क्या? रेवा, is there any doubt for ethyl? Is there any doubt for ethyl? No. ठीक, चलो ठीक है. अब देखो प्लीज, इथाइल में क्या हो रहा है? अगर मैं एक ब्रांचिंग और लगा दूं, दिस इज नॉट गेटिंग नंबर. अगेन इट इज 1 dash 2 dash, but still it is not getting number. Which one? मिथाइल वाला. अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि सर मैं ऐसा कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है? 1 2 3. अब तुम बोलोगे सबको नंबर मिल गया, बट नो. दिस इज IUPAC रूल कि numbering first must be given to that carbon which is just below to the straight chain. Okay, so straight chain. I'm sorry, by mistake मुझसे पूरा का पूरा पेज रब हो गया, बट डोंट वरी, मुझे याद है क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 पर ही था. आई थिंक 5 पर ही था ना, या 6 पे था? आई थिंक यस 5 पर ही था. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. चलो अच्छा 11 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now numbering must be given like this one. 7 8. अच्छा अभी भी 10 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Now numbering must be given to 1, to that carbon which is directly attached to the main chain, which is directly attached to the main chain. This is IUPAC rule. ज्यादा confusion हो रहा है तो 1 dash and then apply the same rule, longest chain after giving numbering 1. So this is 1 2, लिख ले dash. Now this methyl is not getting any number. Okay, this methyl is not getting any number. So this is side chain of 1 dash 2 dash. So how it is written? First 5 dash bracket, again same rule, prefix and then main chain.
prefix is methyl. इसका main chain is ethyl. And methyl is the side chain of ethyl. Methyl is the side chain of ethyl. Okay. And total carbon is 10 decane. Is it clear now? Please tell me, please, fast. Please tell me. Yes, yes, first word will be capital. उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. Fundamentally, is there any problem? Yes, Darshan. Please tell me, is it clear? Shall I proceed? I will take so many examples, don't worry. तुम तो जानते हो मैं एक एग्जाम्पल पे नहीं रुकता. ओके, क्लियर क्लियर. ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया. वेरी गुड. समझ गया मैं समझ गया श्रावणी. अब देखो, दर्शन ने मुझे आज से 10 दिन पहले भेजा था कुछ ऐसा था. उन्होंने और भी बड़ा चेन लिया था. पैकिंग है ना, पैकिंग का है तो इसमें कौन सी बड़ी बात. इसमें नहीं था और क्या. लेकिन ये जो जनवरी में है ना तो अलग पैकिंग कभी देते हैं कभी नहीं देते. First tell me numbering must be given to side chain preference or functional group preference. Bolo, it must be given to functional group. It must be given to functional group now. So functional group के लिए problem is that it must be left or it must be right. Both are same, left and right, but functional group के बाद Right, sir. yes, functional group के बाद Right. side chain is nearer to functional group. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now this side chain present at carbon number 3 is behaving as a branch within the branch. ठीक, किसी को लगता है तो मैं और भी बढ़ा दिया, ये ले ले. वेदांग हेक्साडाइइन भूल गए सब. इस पर टेस्ट भी होना चाहिए. तो एक छोटा सा कल हम लोग क्लास में ही टेस्ट लेंगे, ठीक है ना.
और सिंपल टेस्ट। उसके बाद एक वो टेस्ट कैसा होगा, जस्ट प्रैक्टिस टेस्ट होगा। ओके, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। प्रैक्टिस टेस्ट होगा, उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। और जो एज अ टेस्ट जैसा होता है वो मैं 1-2 दिन के और बाद लूंगा, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। चलो, हाँ बोले विच टॉपिक शुड आई स्टार्ट। इसके बाद अगर मैं देखता हूं, अगर स्टार्ट करना है तो हम लोगों को आइडर मोल कॉन्सेप्ट या फिर पीरियोडिक टेबल। मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल, जो तुम लोग बोलोगे वो मैं कर दूंगा। वेदांग बोल रहा है पीरियोडिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लूंगा। अभी पहले इसको खत्म कर लो, इसको खत्म कर लिया जाए। अरे मैं ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझता हूँ तुम लोग के। ठीक है ना, मैं बिल्कुल बताता हूँ, जो तुम लोग बोलोगे वही होगा। नाउ नेमिंग, IUPAC नेमिंग, फर्स्ट नंबरिंग मस्ट बी गिवन टू 1। अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ। ओके, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, निधिता कल से स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद क्या, लॉन्गेस्ट। 1 के बाद लॉन्गेस्ट। 1 के बाद लॉन्गेस्ट। 1 के बाद लॉन्गेस्ट। ओके, 1 के बाद लॉन्गेस्ट, 1 2 3। अगर सपोज इथाइल ही रहा था तो क्या होता, 1 2। ठीक, नाउ कॉम्प्लेक्स नेमिंग फर्स्ट लिख करके खत्म करो। क्या हो जाएगा, 3 डैश। सब लोग ट्राई करो, अच्छा 1 मिनट के लिए अपने से, और मुझसे मैच कराओ। ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ओके, ट्राई करो, मैं बताता हूँ। तुम देखना, मुझसे पीछे सब लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे और मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ CS3 CS2 करते करते वो पूरा केमिस्ट्री खत्म कर देंगे और सबको बहुत अच्छा लगता है। यस, करेक्ट करेक्ट, वेदांग करेक्ट। दर्शन इज सेइंग 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल हेक्सा 2, नो, हेक्सा 1,5 डाइइन। दर्शन, दर्शन नॉट 2, हेक्सा 2 का मतलब 2 टाइम्स नहीं, 2 का मतलब पोजीशन लिखना होता है। यस, श्रावणी वेरी गुड, रितायन वेरी गुड, सही वेरी गुड। और भी लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, फास्ट फास्ट प्लीज, फास्ट प्लीज। हाँ योगेंद्र, अरे वाह ग्रेट। योगेंद्र ने सबसे लेट में ज्वाइन किया है। यस, 1,1 होना ही होना चाहिए अभिदा, क्योंकि नाउ इट इज साइड चेन। चलो, नाउ अब मुझसे मैच कराओ। सो दिस इज 3 1,1। अब मैं डैश हटा दे रहा हूं। ओके, क्योंकि दिस 1 इज इनसाइड द ब्रैकेट, सो देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। डाई मिथाइल and this is the side chain of propyl, इसलिए डाई डाई मिथाइल प्रोपाइल के बाद
This is hexa 1,5 diene. Okay, diene. बाईसाइक्लो बोल रहे हैं एक बार फिर से कंप्लीट करने के लिए। सब लोगों को समझ में आया था क्या बाईसाइक्लो? बोलो। वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया, इसके बीच में जो नहीं आया हम लोग वो सब उल्टा सीधा करके देख लेते हैं अब, ठीक है ना? आज का लेक्चर हम लोगों का अब रिवीजन टाइप का। दिस इज बाईसाइक्लो, two cyclic compounds present in a compound. Two rings are fused, so this is called as bridgehead. ये वाला कार्बन कॉल्ड एज ब्रिज, ठीक? क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए उन्होंने ब्रिज हेड। नाउ एज पर एज IUPAC रूल, नंबरिंग मस्ट बी गिवन टू ब्रिज हेड ओनली। ब्रिज हेड से ही स्टार्ट होगा। नो, दिस इज नॉट अ लुईस स्ट्रक्चर्स। IUPAC के लिए अभी हम लोग उतना ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, मैं बताऊंगा कहाँ पे कब करना चाहिए। तुम्हें तो पता है, जब मैं करता हूं तो पूरा ऑपरेशन कर डालूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड देन नंबरिंग, 1 के बाद 2 आइडर साइड, हो गया। हाउ नंबरिंग इज डन? पेरिफेरी 1 2 3 4 5 6। one must be present at bridge head only. Okay, so how numbering is done? 1 2 3 4 5 6 periphery, two cyclic compound, that's why it is called as bicyclo. स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है। उसके बाद क्या करो, इसको कवर करो। किसको कवर कर दिया? ब्रिज को। ब्रिज के ऊपर पेन रख दो, जहां पे तुमने लिखा है ना वहां पे पेन रख दो। पेन रख दिया तो लेफ्ट साइड क्या दिखाई दे रहा है? कितने कार्बन? 5 और 6, दैट इज 2। राइट साइड कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। अब पेन को हटाओ, पेन को हटाओ। ओके, तो पेन को हटाया तो कितने कार्बन दिख रहे हैं ब्रिज में? 2 नहीं, इसको छोड़ करके एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 0। टोटल कार्बन इज 6, so this is hexane. ओके, हाँ बोलो। वेदांग ने हाथ उठाया है, बोल वेदांग। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। इन्फिनिट रिएक्शंस है भाई, इन्फिनिट रिएक्शंस है। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। इफ देयर इज CHO, then also number will start from bicyclo. Yes, whatever is the group present doesn't matter. अगर ऐसा है तो ये लो, ये लो। इतना डिटेल में तो भाई, अरे कहीं पे बाईसाइक्लो भी नहीं करवाते हैं तुम लोग, इतना डिटेल में बोल जा रहे हैं हम लोग। नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम ब्रिज हेड, आइदर दिस वन। बट अगर तूने नंबरिंग नीचे से किया तो 1 2 3,
अगर तूने नंबरिंग ऊपर से किया तो 1 2, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए 1 2 से। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 and then 7. After completion of periphery, go to bridge. So it is bicyclo बाईसाइक्लो। फिर से क्या करो, 1 and 4 को पकड़ो, लेफ्ट साइड टू राइट साइड टू, ब्रिज में एक, टोटल कार्बन 7, हेप्टेन। अब तुम लोग कहाँ कहाँ मुझे लेकर के जा रहे हो रे बाबा। देखो क्या लिख दिया मैंने, तुम लोग बोलोगे ये क्या हो गया सर, चल इसका नाम बता। भाई मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब IUPAC नेमिंग जब स्कूल कॉलेज खुलेगा तो स्कूल कॉलेज के टीचर से नहीं पूछना, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा, यू विल बी फेल्ड। क्योंकि तुम्हारे टीचर को लगेगा कि तुम उनको परेशान करने के लिए पूछ रहे हो क्वेश्चन, और उनको नहीं आएगा तो तुमको फेल करेंगे, पक्का है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। टीचर्स को भी नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है मेरी। अरे बाबा इससे क्वेश्चंस नहीं करना अभी वेदांग, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बा अल्डिहाइड, दिस इज स्पेशल नेमिंग। लिख ले, लिख लो भाई। साइक्लोएल्केन कार्बाल्डिहाइड, इसलिए इधर हमने कार्बाल्डिहाइड लिखा है। ओके, नो हेप हेप्टेनल यू कैन नॉट राइट ना, हेप्टेनल का मतलब स्ट्रेट चेन हेप्टेनल, तो इस वाले से क्लियर कर, हेक्सेनल यू कैन नॉट राइट। एंड इफ यू आर राइटिंग साइक्लोहेक्स मतलब साइकिल में 6, इफ यू आर राइटिंग साइक्लोपेंट पेंटेनल तब पर भी रॉन्ग हो जाता है, ये सब है। तो भाई हम लोग बहुत इधर उधर निकल गए डेफिनेटली नंबरिंग में।
first numbering is done in periphery, then after periphery we are going to bridge. Okay, Vedang? Darshan is saying why it is not cyclopentanaldehyde. If you are writing cyclopentanal, matlab only 5 carbon is present, but there are 6 carbon. अब बोलो. Okay. अब समझ में आ रहा है? IUPAC naming. यस, लास्ट वाले अगर थोड़े से बाउंस भी चले गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब ये चैप्टर्स में आएंगे तो उस टाइम पे मैं और भी कराऊंगा. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. आर्या, ऐश्वर्या, मैत्रेयी, जल्दी सब लोग बोलो, समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई. दर्शन बोल रहे वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छी बात है, इंटरेस्ट आ रहा है तो. बहुत सारे ऐसे नेम है जहां पे तू क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, परेशान होगा. मैं जानबूझ करके इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं. अगर हम लोग फिजिकल लाइव क्लास में होते तो मैं और भी इसको इंट्रोड्यूस करा करके करता. बट स्टिल वी आर फार अहेड फ्रॉम अदर कोचिंग. मोर देन हम लोग बोल रहे हैं उनसे 100% ज्यादा कर लिया है. इट्स रियली अमेजिंग, इंटरेस्टिंग. बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है. दूसरी जगह होते तो CH3 CH2 3-4 कार्बन से ऊपर नहीं होते अब तक, और एक फंक्शनल ग्रुप ही वो लगा करके रखते हैं. तो आज के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर लिया जाए कुछ और भी, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो. यस और नो? ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं यस, प्रैक्टिस करना है. मैंने दो एक बुक का फोटो भेजा था और एक PDF भेजा था सब लोगों को. दोनों से प्रैक्टिस करेंगे. सॉरी, वो भी रख सकता था. So CONH2, that is amide, is given more preference than other functional groups. ठीक है ना? ये तुझे और ज्यादा समझ में आएगा. तुझे अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा. अगर इसी प्रॉब्लम को तू ऐसा लिख देता, बोल रिटायन, रिटायन, ये देख, है ना? नंबरिंग मस्ट बी गिवन टू प्रायोरिटी हाईएस्ट 1 2 3. अब देखो 3 नीचे भी आ सकता था, बट 3 नीचे नहीं आया, since left side is containing functional group. Okay, so it is 2-methyl 2-oxo 3 carbon, so this is प्रोपेन. अभी देखना, सब इतना मेरे पढ़ाने के बाद भी ज्यादा नहीं, 4-5 दिन का भी गैप अगर तुमने रखा तो सब इंटरमिक्स्ड हो जाएगा, सब इंटरमिक्स्ड हो जाएगा. इसलिए प्लीज डू प्रैक्टिस अ लॉट.
तो मैंने लिखवाया है प्रीफिक्स में क्या बोलेंगे एंड सफिक्स में क्या बोलेंगे. CHO is behaving as a principal group. Numbering must be starting from 1. तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें देखो हाईएस्ट किसको प्रायोरिटी देते हैं, उधर से स्टार्ट करेंगे. टेल मी फास्ट. फोर ब्रोमो. ब्रोमो के पहले अमाइनो आ जाएगा. फोर क्लोरो. टू मिथॉक्सी. पेंटेनल डिहाइड. पेंटेनल डिहाइड. वाओ, वेदांग 100% करेक्ट. Why not सॉरी पेंटेनल डिहाइड क्यों होगा भाई, सिर्फ पेंटेनल होगा ना. यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी. पेंटेनल पेंटेनल. प्रणव. यस, CHO इज कॉल्ड इज पेंटेनल. अल होगा ना. ओके. सो इसका नेमिंग बोलो, सिंपल सा नेमिंग, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए. दर्शन ने लिखा प्रोपेनॉइल क्लोराइड. ही इज राइट. और सभी लोगों का आया क्या? यस, श्रावणी करेक्ट. निदिता, प्रणव, रेवा. प्रणव 1 नहीं लिखेंगे, सब लोगों का करेक्ट है. ओके, बोलो किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? So tomorrow we are going to start with a new chapter is called as periodic table. मैं बताऊंगा कितना फनी वे में हम लोग पूरे periodic table को ऐसे ही याद कर लेंगे फिंगर टिप पे अपने. पूरा periodic table, no need to remember. ऐसे ही फनी वे में. फॉर एग्जाम्पल तुमने पढ़ा होगा 5th ग्रुप में फॉस्फोरस, ऊपर सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ऐसा करता हुआ ना, है ना. उसको हम लोग ऐसे ही फनी वे में याद कर सकते थे. हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मृणाल बोल रहे हैं. प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट वन, ये वाला. यस. तो इसमें क्या करना है, this is CONS2 is given highest priority, that's why this is 1 1 2, and if you are writing 3 here, so CHO is behaving as a side chain. Okay, and if you are writing 3 left side, then CS3 is behaving as a side chain.
तो functional group must be included first. Consider a chain in which maximum number of functional groups are coming. So if you are going to straight, means CHO is coming in the straight chain. Okay, that's why it must be given to preference as compared to ethyl, methyl, propyl. क्योंकि इसी प्रॉब्लम में अब मैं फिर से लिख रहा हूं, नीचे सबसे देखो राइट, ये देख कितने कार्बन मैंने लगाया है साइड चेन में, हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2, बट वी विल गिव 3, जबकि नंबर ऑफ कार्बन इज मोर इन इफ यू आर गोइंग थ्रू लाइक दिस वन. ये नहीं है, ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा. तो यू हैव टू कंसीडर अ चेन in which maximum number of functional groups are coming. ओके, मैक्सिमम स्टेट चेन तब लेते थे हम लोग जब उसमें फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह नहीं होते थे, प्योर हाइड्रोकार्बन होता था तो के लिए. अब बोलो, कैन फंक्शनल ग्रुप बी वन कंपाउंड? फंक्शनल ग्रुप नॉर्मली तुझे वन कंपाउंड तो मुश्किल है, ठीक है ना. और बोलो किसी का कोई प्रॉब्लम, बोलो. रितायन, tell your friends for joining Saro's tutorial for the chemistry. At least in terms of result, nobody can match with me. तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, एक एक क्लास में और भी टीचर्स हैं जिनके पास 150 बच्चे बैठते हैं. थिंक अबाउट दैट, 150 बच्चे एक क्लास में, उनको क्या समझ में आएगा? उनको क्या समझ में आएगा? 150 क्या बैठ के पढ़ेंगे? Ritan is saying, can we solve the problems of dicyclomore? हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स. हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला करके टोटल 70 to 80 हार्डली रहते हैं, और उसी में ही मेरे पास इतने रिजल्ट्स करके आते जाते रहते हैं, ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच. कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पर, ठीक. चलो, गुड डे प्लीज, थैंक यू, बाय 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 बाय. हाँ वेदांग, बोल वेदांग, कुछ बोलना चाह रहे हैं?